फोकस करते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज के मैनेजमेंट पर और हमारे साथ शामिल हो रहे हैं मन्नपुरम फाइनेंस के मैनेजमेंट। उनसे खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी और सीईओ वीपी नंद कुमार जी। मैनेजमेंट से चर्चा करेंगे हम और साथ ही साथ मार्केट एक्सपर्ट से फंडामेंटल राय भी लेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, कंपनी के बारे में एक बेसिक जानकारी अपने व्यूअर्स को हम दे देते हैं। मन्नपुरम फाइनेंस जो है वो गोल्ड लोन देने वाली एक दिग्गज कंपनी है। 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी और देश भर में शाखाएं हैं इसकी। करीब 28 राज्यों में इसकी शाखाएं हैं और 25 लाख से ज़्यादा एक्टिव ग्राहक इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अब नंद कुमार जी जुड़े हुए हैं। नंद कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। पहला सवाल पिछले क्वार्टर से जुड़ा ही करते हैं। हमने देखा, आप बताइए कि क्वार्टर आपके लिहाज से कैसा रहा, क्योंकि जो AUM है वो तो बढ़ते देखे हैं हमने, करीब 5.5-6% बढ़े हैं, लेकिन जो प्रॉफिट है वो करीब 8% नीचे रहा है। फिर भी ऐसा क्यों? So if you can ask me the questions in English, yeah. No problem. So Mr. Nand Kumar, no problem. Let's start in English only. I wanted to understand about the quarter gone by. How has the company performed? We have seen the numbers and we've seen that the AUMs have gone up by around 5.5-6%, but the profit after tax has gone down by 8%. Why has that happened? Yeah, the one reason is even though the growth was there, it has come towards the second half of the second half. The average loan portfolio was down by around 3%. So the results will be available in the coming quarters. So the growth has come towards the end of the second quarter. That's the one reason. Whereas the average portfolio was slightly down. The second thing is, as things have come back, so we want to, we could bring all the employees in our branches, because during COVID times, there was some absenteeism of 10-15% of our employees. We were able to bring in. And also to revive the market sentiments, we need to spend some amount for creating awareness, publicity, etc., reminder, etc., to the customers, so that the expenditure for advertisement and publicity was up, for bringing employees, and also for doing a lot of marketing activities around branches. We need to spend a lot more. This is the reason. But the benefits of this growth will be available in the coming quarters. We'll see the effect in the coming quarters, like you say. Now the question is, have you seen the demand gone up against to the pre-COVID levels, or the level of NPAs, which is a concern for a company like you? How has that been? So our GNPA and net NPA has not gone up. It is at the same level of around 1.5% only GNPA. So it has not gone up. About the demand, the demand has picked up as the rural economy has started growing, signs of improvement. That is, the benefits are available. As far as the demand is concerned, demand has come to the pre-COVID level now already, and we hope it will further improve. Now that is a good news if the demand has gone up to the pre-COVID level. But coming back to the question of NPA, Mr. Nand Kumar, how has the company provided for it? What is the situation of the provisioning? You are saying that the NPAs have not gone up. Do you fear that they might in the coming quarters, and how are you providing for it? See, whatever has been there, the LGD level, we have sufficiently provided. So our provisions are far more higher than the regulatory requirements. Okay. So you have sufficiently provided, like you are saying. Another question is your view on the cost of borrowing. Do you think it has bottomed out, or do you think it will expand?
So I feel like it will remain at this level. I don't think it will go down. But for us, the average there is enough headroom for the average borrowing cost to come down. The reason is in our book there are long-term borrowings borrowed at 10+% when the liquidity was a challenge around 1.5 years back. So that we are carrying, that baggage we are carrying, and in another 1 year it will get liquidated. Then the incremental borrowing, the cost is around 7% or even below that. The blended cost is even below that. So for us, the likelihood is the average borrowing cost to come down. Okay. We would like to know about your new customer acquisition, Mr. Nandakumar. How many customers have you acquired? What is the growth? And another question related to that is, what is the average loan ticket size for your business? So the new customer acquisition during pre-COVID level was around 4,000 to 5,000 customers a day. Now it has already come back to that level. But as things are progressing, I hope it will improve by another 10% in the coming days. Okay. And since you are adding more new customers, do you think the collection efficiency of the company has gone up? When will it be back to the Q4 FY21 level? See, in our major business is lending against jewelry. There, the NPA level on the dispersal is around 0.5%. It is not very big. So when things improve, when the livelihood also improves, the chances are it will only come down. Mm-hmm. Coming to the company plans, Mr. Nandakumar, going forward, we know that your company has a very heavy presence in south of India, although you are also present in different parts, east, west and north of India too. But south is where mostly the bigger part of the business is. Do you have any plans for the regional expansion and moving, aggressively to the other parts of the country? So, as a gold loan company, for more than when we have 1,000 branches, for more branches, we need to get prior approval from the Reserve Bank of India. We have applied to Reserve Bank of India for opening some 200 more branches, particularly in eastern part of India, where there is a good concentration of pawnbrokers and money lenders. There to wean away these customers from these money lenders at an affordable rate. We feel like that is possible. And we applied in for the spot. Okay, one final question, Mr. Nandakumar, is would like to know about the growth in your non-gold segment, microfinance and other departments where we have seen the demand picking up. Have you seen that on ground, and how is the company performing in the non-gold segment? It's our non-gold portfolio, the microfinance portfolio, the demand is good. But our focus is to ensure our regular customers are given new loans. And while acquiring new customers, we are giving to customers whose profile is seen better. We have developed some internal underwriting parameters, etc. We have been lending to them, and where we see the collection level at 99+%, which was the usual collection level for MFIs pre-COVID.
So the new portfolios, the collection is very good. But to answer your question about the growth of those businesses, yes, microfinance, it may reach around 25% of our AUM. The likelihood is it will remain there. In other segments like vehicle finance, affordable housing finance, MSME, etc., which are all fully collateralized, we see good growth now. The growth has come back to the pre-COVID level already. Okay, Mr. Nandakumar, thank you very much for joining on ET Now Swadesh and talking to us. VP Nandakumar, यहाँ पर मन्नपुरम फाइनेंस के MD और CEO बता जो है का बिजनेस प्री कोविड लेवल पर पहुंच गया है, डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आगे हमने देखा कि फ़िलहाल इस क्वार्टर में तो कंपनी का जो है वो लॉस में थी, लेकिन आगे जो है प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद बता रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने का प्लान कर रही है। तो ये ब्रॉडली मन्नपुरम फाइनेंस के प्लान्स हैं। इस शेयर पर और कंपनी पर अपना फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ मयूरेश जोशी भी जुड़ गए हैं। मयूरेश, कंपनी की योजनाएं तो काफ़ी अच्छी दिखाई देती हैं, लेकिन आप इस पूरे सेक्टर को और इस स्टॉक को किस तरह से देखते हैं? गुड आफ्टरनून। दो चीजें, पहली तो आई थिंक जो नतीजे आए थे थोड़े डिसअपॉइंटिंग जरूर थे, क्योंकि गोल्ड लोन बुक 12-13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ था। गोल्ड होल्डिंग्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% डिक्लाइन हुई है, और पिछले 2 से 3 तिमाही में गोल्ड होल्डिंग 15% और गोल्ड ईएम 18% डिक्लाइन हुए हैं। हाउएवर आई थिंक जो कंपटीशन है, जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल रहे हैं, डिक्लाइन इन टनेज ऑफ गोल्ड बीइंग ऑक्शन्ड और लोअर रेट जो न्यू कस्टमर एक्विजिशन के आ रहे हैं, उसकी वजह से आई थिंक थोड़ी दिक्कतें जरूर आ रही है। बट मैनेजमेंट काफी होपफुल है। तो आई थिंक जो एसेट क्वालिटी है ऑन द अदर काउंट वो लार्जली स्टेबल था। तो जीएनपीए 1.95-1.96% के आसपास थे। और हालांकि आई थिंक नॉन गोल्ड में आई थिंक लोन फ्लैट था। एमएफआई जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट है हाउसिंग और व्हीकल में, थोड़ी अच्छी लोन ग्रोथ देखी गई है। अगेन फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, एसेट लायबिलिटी मिसमैच में कोई दिक्कत ही नहीं है। एलटीवी लोन टू वैल्यू होता है, वो कंफर्टेबली प्लेस्ड है, लुकिंग एट प्राइसेस एंड द रेट एंड द क्वांटम एट विच लोन्स आर गिवन इन माइंड मार्जिन और जो सिक्योरिटी रखते हैं। एंड निम्स, क्योंकि आई थिंक जो बोरोइंग मिक्स है मन्नपुरम का, एनसीडीज हैव नाउ गॉन अप टू 41% और सीपीएस सिर्फ 5% के आसपास है। तो यस, आई थिंक 2 क्वार्टर्स में आई थिंक थोड़ी रिकवरी जरूर देखने मिलेगी। फ्रॉम अ स्टॉक पर्सपेक्टिव मुझे लगता है 172 लेवल जो उसका 200 डीएमआ है, ये होल्ड करना बहुत जरूरी है। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक जो 190 लेवल है जो इसका 50 डीएमआ है, ये सरपास करना विद वॉल्यूम्स बहुत जरूरी है फॉर एन ट्रेंड टू कंटिन्यू। जब तक नहीं होता है मुझे लगता है आई थिंक एक रेंज बाउंड ट्रेड शायद नतीजों को मद्देनजर रखते हुए ये स्टॉक निकाल। ओके मयूरेश, मन्नपुरम फाइनेंस इसमें से चूज करना हो अगर इसी सेक्टर में, तो किसको पिकअप करेंगे? नहीं, आई थिंक मुथूट और मन्नपुरम दोनों डायनामिक्स सिमिलर है, डिवर्सिफिकेशन भी कर रहे हैं, एंड बोथ ऑफ देम विल हैव द सेम इश्यूज। हालांकि मुथूट में ज्यादा इतनी तकलीफें नहीं देखने मिली इन टर्म्स ऑफ ईएम टनेज और गोल्ड लोन बुक डिक्लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आई थिंक प्लेसमेंट के हिसाब से दोनों शायद रेंज बाउंड रहेंगे। अगले तिमाही में जैसे नतीजे आएंगे, मुझे लगता है कि एक डिसाइडिंग फैक्टर रह सकता है स्टॉक के लिए, पर तब तक मुझे लगता है एक रेंज बाउंड रेट रहेगा दोनों कंपनीज के लिए। प्लेसमेंट के हिसाब से आई थिंक मुथूट के डायनामिक्स काफी पैरामीटर से मन्नपुरम से थोड़े बेटर हैं ये। ओके, तो मुथूट के पैरामीटर्स बेटर दिखाई देते हैं यहाँ पर। मयूरेश, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में और हम देख रहे हैं कि बाजार में इतनी अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। आज एक सवाल मार्केट पर पूछना चाहूँगा, निफ्टी आपको लगता है कि बॉटम हो गया है आज, या अभी वेट करना चाहिए नई पोजीशन लेने से पहले? नहीं, थोड़ा वॉचफुल रहना जरूरी है। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल देखी गई थी कल के एंड सेशन में, लास्ट आधे 1 घंटे में। थोड़ी आई थिंक निफ्टी भी एक रेंज में रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से कल वॉल्यूम्स में मार्केट नीचे आया था और ऊपरी सत्र पे जैसे रेजिस्टेंस बिल्डअप है, स्पेसिफिक आई थिंक जो फुट कॉल रेशियो है एक्सपायरी थर्सडे को है, तो काफी वॉलेटाइल रह सकता है हफ्ते, और ग्लोबल मैक्रो क्यूज एज वेल। तो आई थिंक अगले कुछ दिन या 1 से 2 हफ्ते शायद मार्केट के लिए वॉलेटाइल रहेंगे। तो थोड़ा आई थिंक वेट एंड वॉच अप्रोच करे, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक उलझन रखना चाहिए मार्केट में। आई नॉट बी हियर सेइंग दैट मार्केट शायद बॉटम आउट हो गए हैं,
थोड़ा कॉशियस रहने इसमें मार्केट में जरूरी है। ओके, बहुत शुक्रिया मयूरेश हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। कॉशियस होकर थोड़ा चलना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। हालांकि बाजार ने एक यू टर्न ज़रूर मारा है, लेकिन आपको तुरंत एंट्री करने के लिए, नई खरीदारी करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मयूरेश का ये कहना है, कॉशियस होकर चलिए फिलहाल मार्केट पे। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर का SPV L&T हलोल, इसके रेजोल्यूशन प्लान को लेकर एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। डिटेल्स के लिए हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, बताइए। जी हाँ, L&T हलोल को लेंडर्स इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के जरिए रिजॉल्व करना चाहते हैं और हमें मिली जानकारी के मुताबिक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOIs मंगवाए जाएंगे। जो EOIs को सबमिट करने की डेडलाइन है वो 12 दिसंबर रखी गई है और आगे की टाइमलाइन के मुताबिक 29 दिसंबर तक इन EOIs को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपना फाइनल रिजोल्यूशन प्लान 19 जनवरी 2022 तक सबमिट कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके मुताबिक कंपनी जो अप्लाई कर रही हैं उनका मिनिमम नेटवर्थ 200 करोड़ रुपए होना चाहिए। आपको हम बता दें, L&T हलोल एक स्पेशल पर्पस व्हीकल थी L&T इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि जो 173 किलोमीटर लंबा 2 लेन हाईवे है हलोल से लेके शामला जी तक गुजरात में, उसको 4 लेन में कन्वर्ट किया जाए। हालांकि ये प्रोजेक्ट कभी टेक ऑफ नहीं हो पाया और लेंडर्स अपना डेट को रिकवर नहीं कर पाए और जिसके बाद NCLT चेन्नई में इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू हो गई। तो अब लेंडर्स EOIs मंगवा रहे हैं इसी डेट को रिजॉल्व करने के लिए और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द कोई एक रिजोल्यूशन एप्लीकेंट का चुनाव हो पाएगा। शुक्रिया अंकुर। तो बहुत जल्दी रेजोल्यूशन की उम्मीद की जा रही है वहाँ पर L&T हलोल के लिए। चलिए एक एक्सक्लूसिव खबर से दूसरी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ चलते हैं। स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह ने ET नाउ स्वदेश से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया है कि वो कार्गो डिवीजन पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत में एक बड़ा कार्गो हब बने। देखिए, जब कोविड की कठिनाई हमें हुई तो हमने ये सोचा कि जो भी इस समय प्रॉब्लम है उसमें एक हमें एडवर्सिटी में कोई एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका ढूंढना चाहिए और वो मौका हमें कार्गो में मिला। उस समय कार्गो का कोई और साधन नहीं था, तो हवाई जहाज में हमने कार्गो का बिजनेस को काफ़ी बढ़ाने की कोशिश की। जो एक 30-40 मिलियन डॉलर का बिजनेस था वो अब 350 मिलियन का बिजनेस हो गया है। और जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, इस समय 10,000 करोड़ के करीब की वैल्यू हम इसकी आंक रहे हैं और जो हमारे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं हमसे चर्चा कर रहे हैं। तो एक हमारा एक स्पाइसजेट का एसेट क्रिएट हुआ इस पीरियड में और उसमें बहुत ग्रोथ हम अगले कुछ वर्षों में देख रहे हैं। इंडिया का लीडिंग लॉजिस्टिक्स बिजनेस ये बने, ऐसा हम चाहते हैं। और इंडिया का एक जो स्थान होना चाहिए एक कार्गो का एक हब, क्योंकि हम एक प्रोड्यूसर नेशन भी हैं, हम एक कंज्यूमिंग नेशन भी हैं और हमारी ज्योग्राफिक पोजीशन ऐसी है कि जो प्रोड्यूसर नेशंस हैं साउथ ईस्ट एशिया में और कंज्यूमिंग नेशंस हैं यूरोप और अमेरिका में, उसके बीच में हम इंडिया का स्थान है। तो कोई भी कारण नहीं है कि इंडिया का कार्गो यहाँ से उठा के गल्फ में हब किया जाए और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो जो मौका हमने पैसेंजर में गंवाया था वो हम चाहते हैं कि कार्गो में भारत उसका पूरा अपनी पोजीशन का फायदा उठाए और यहाँ पर हम बड़ा कार्गो का हब बना सकें और उसमें स्पाइस एक्सप्रेस और स्पाइसजेट एक अहम भूमिका निभाए। तो भारत को एक कार्गो हब बनाने की तैयारी में स्पाइसजेट। चलिए, कॉर्पोरेट करेक्शन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट।